Hi friends, how are we today? So let me welcome you to a very interesting session in high score English. So what are we going to do today? We are going to do articles. Articles are one part of the determiners. Okay? And so what are articles? ये बहुत common है, हम सब जानते हैं. A, which is pronounced as a and the. These three words, they come under the category of articles. So today I am going to do a and an with you, and probably in the next session I will do the with you so that you understand very minutely and very precisely what we have to deliver. So let's start. So what we are going to do today, we are going to do articles. Okay? Articles. Now articles, as I have already told you, they belong to a family or a unit called the determiners. Now articles demonstrate the position of a noun. They tell us about the position of a noun. So that means they tell us more about a noun. They are always, because they tell us about a noun, they are placed before a noun. हमेशा याद रखना, they are placed before a noun. Now articles can be put into two categories, which I have already told you. What are those categories? वो categories हैं a और and the second category is the. So when we have a and the, they come under the name of articles. Now let's move forward. Now indefinite articles and definite articles. So अब हमने क्या category रखी? A and को एक category, the is another category. So indefinite articles में a और an आएगा, definite के अंदर the आएगा. ये बहुत क्लैरिटी से समझ लेना आप. indefinite के अंदर a and आएगा, the के अंदर definite जो कैटेगरी उसमें the आएगा. And a and is always placed in front of a singular noun. In front of a singular noun. दो चीजें याद रखना, indefinite and singular. उसमें आते हैं. So when we do not speak of any particular or definite person, place, animal or thing, noun क्या होता है? It's the name of a person, place, animal or thing. तो जब हम कभी भी indefinite person, place, animal or thing के बारे में बात करते हैं, then we use that is a or an. It is always singular. Definite article is used when we speak of any particular person, place, animal or thing. Now what is the fundamental usage of a and an? Okay, a and an. It is always used before a common noun. Common noun. कब proper noun के आगे use होता है मैं आपको बताऊंगी, पर सबसे पहले आप क्या करोगे? Common noun in a singular state. It is always in a singular state. ये हमेशा याद रखना. Okay. Now for example, I saw a cow. कोई भी cow. It can be any cow. मैंने एक गाय देखी. तो जब भी ये वर्ड आता है ना एक हिंदी के अंदर, उसमें आएगा a और an. Okay? I saw an elephant. अब यहाँ पे a क्यों आ रहा है, an क्यों नहीं आ रहा है, या an क्यों आ रहा है, a क्यों नहीं आ रहा है? I'll explain it further. अभी आप बस इतना याद रखो, common noun in a singular state, we use a article or we use an article. Now for example, और या फिर हमारे को रिप्लेस करना हो एनी, कोई भी, ठीक है, तो तब भी आप बोल सकते मैंने कोई मिस्टर शर्मा आपके लिए पूछ रहे हैं. अब मैंने क्या वर्ड यूज किया? कोई मिस्टर शर्मा. तब ओनली इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस कोई मिस्टर बाटला आपके लिए पूछ रहे हैं. जब ये पर्टिकुलर सेंटेंस आएगा तभी आप लगाओगे प्रॉपर नाउन के आगे द. अ मिस्टर शर्मा. अब आपको मालूम नहीं है ये मिस्टर शर्मा कौन है, आपको मालूम नहीं है, इनडेफिनिट हो आप. लेकिन ये नहीं है कि डेफिनेट लगाते द मिस्टर शर्मा हो जाएगा. प्रॉपर नाउन के आगे ए एंड या द नहीं लगेगा एज फार एज अ पर्सन इज कंसर्न. ओके, सो अ मिस्टर शर्मा इज आस्किंग फॉर यू. ठीक है, आपके बारे में पूछ रहे हैं, यानी कोई. तो एनी जब लगता है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अ से. फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल वॉज क्रॉसिंग द रोड. कोई भी लड़की, एक लड़की रोड क्रॉस कर रही थी. कोई लड़की रोड क्रॉस कर रही थी. जब भी ऐसा वर्ड बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? अ गर्ल. नाउ अगर आप
सपोज वो करते हो, वॉवल साउंड आगे लगाते हो, कब आता है एन। एन कब आता है? वॉवल के आगे। एन ओल्ड मैन डिपेंड्स ऑन हिज चिल्ड्रन फॉर हिज लाइवलीहुड। अब यहां पे ओल्ड मैन कोई भी हो सकता है, ये जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन ओल्ड कराया आपने, ओल्ड इज अ वॉवल। अब हम लोग आगे बताती हूं मैं आपको कि वॉवल जो है वो कौन कौन से, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर्स, वॉवल लेटर्स, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। नाउ व्हेन वी कन्वर्ट दिस थिंग, कन्वर्जन फ्रॉम इनडेफिनेट आर्टिकल टू डेफिनेट आर्टिकल, तब हम क्या लगाएंगे? देन वी विल यूज द। जब हम कन्वर्जन करेंगे किससे? इनडेफिनेट से डेफिनेट, तब हम लगाएंगे द। और व्हेन अ कॉमन नाउन इज सिंगुलर एंड देन इट चेंजेस टू प्लूरल, प्लूरल के अंदर हमेशा द लगेगा, सिंगुलर में अ या एन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ, ये आर हटा दीजिए, आई सॉ अ काउ ग्रेजिंग, कितना है? अ काउ। मैंने एक, जब भी ये वर्ड आता है ना हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो फटाफट, जब भी ये वर्ड आता है एक, एक में क्या आएगा? अ। आई सॉ द काउज ग्रेजिंग, अब क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया, काउज यानी बहुवचन, तब हम लगाएंगे द, क्योंकि ये प्लूरल है। व्हेन अ नॉन पर्टिकुलर नाउन चेंजेस इनटू अ पर्टिकुलर नाउन, तब भी हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल वॉज क्रॉसिंग द रोड। ओके, तो अब अ गर्ल क्या है? कोई भी गर्ल। लेकिन जब हम इसको बोलेंगे अ गर्ल इन रेड फ्रॉक, एक लड़की जिसने रेड फ्रॉक पहनी है, तो अब आप एक डेफिनेट लड़की की बात कर रहे हो क्योंकि आपने उसकी रेड फ्रॉक नोटिस की है, तब आप लगाओगे द गर्ल। अगर कहोगे एक लड़की रोड क्रॉस कर रही है, तो आप क्या लगाओगे? अ गर्ल वॉज क्रॉसिंग द रोड। अगर आप लगाओगे वह एक लड़की जिसने रेड फ्रॉक पहनी है, तो अब आपने उसको डेफिनेट कर दिया, तो आप लगाओगे द गर्ल। ओके ओके, सो नाउ जनरल एप्लीकेशन ऑफ ए एंड एन। A is used before a noun with a consonant sound. Consonant sound. And sometimes the noun has both consonant letter and consonant sound. बहुत easy है, आप उसके आगे अ लगा दोगे। तो अब हम एक बार मैं आपको बताती हूं यहां पे साउंड एंड लेटर, लेटर यानी अल्फाबेट। तो कौन से वोवल साउंड होते हैं? साउंड। तो अब आप क्या करोगे? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ एंड ओ, औ। ये अगर आपके किसी भी वर्ड में इनिशियली सबसे पहले ये साउंड आ रहा है, तो वो हो गया वोवल साउंड। एंड व्हाट आर लेटर्स? लेटर्स वोवल है ए, ई, आई, ओ, यू। तो अब ए, ई, आई को, यू को हटा दो, तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचते हैं 21 लेटर्स, 21 अल्फाबेट्स, क्योंकि ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो जो ए, ई, आई, ओ, यू को हटा के 21 लेटर्स बचते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर। और जो कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ के साउंड को हटा दो, तो जो साउंड बचता है वो होता है, स्वर हटा दो, जो व्यंजन जिसको कहते हैं हिंदी में, जो व्यंजन होता है वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड। तो कई बार क्या होता है? कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, प व्यंजन है, तो प्ले जो है कॉन्सोनेंट लेटर भी है, साथ में प शुरू हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड भी है। बहुत इजी होता है, हम क्या लगाएंगे? अ। ठीक है, पर समटाइम्स द नाउन हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड बट अ वोवल वर्ड, यानी वोवल लेटर। यानी कई ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसका साउंड तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका जो लेटर है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है वोवल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम करके देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड एंड कॉन्सोनेंट लेटर, यानी वर्ड यानी लेटर। ओके, बॉय कैसा साउंड है? ब, बॉय। कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड। वुमन, व, वुमन। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर। कॉलेज, कॉलेज। कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड।
अब आते हैं हम ट्रिकी चीज पे, यानी कॉन्सोनेंट साउंड बट अ वोवल लेटर. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो शुरू किससे हो रहा है यूनिवर्सिटी? य. सबसे पहला अक्षर हिंदी में लिख के देख लो कि ये वोवल साउंड है कि नहीं. वोवल साउंड कौन से थे हमारे? अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ. अगर इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है और व्यंजन लिख रहे हो आप, सबसे पहला लेटर आप व्यंजन लिख रहे हो, स्वर नहीं लिख रहे, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड. तो आप उसके आगे लगाओगे अ. यूटेंसिल, सबसे पहला अक्षर क्या लिख रहे हो? य. ओके, तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड. इट मे बी ए, ई, आई, ओ, यू है, इट मे बी अ वोवल लेटर बट द साउंड इज कॉन्सोनेंट, तो हम इसमें लगाएंगे अ. यू, य इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, नाउ ओ दैट साउंड्स एज व. सपोज हम कहते हैं वन, वन. ओके, तो वन को हम लिखेंगे कैसे? व न. पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है. सबसे पहले आप क्या देखो? सबसे पहले आप देखो अक्षर क्या आ रहा है. अक्षर व्यंजन है? हाँ जी व्यंजन है, तो क्या आ जाएगा? व. व क्या हो जाएगा? इट इज इट साउंड्स एज व. सो 1 रुपी नोट, वन वे ट्रैफिक, इट इज व्हाट? व. तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अ रुपी नोट, वन वे ट्रैफिक. एंड इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विद अ वोवल साउंड. हमेशा याद रखना, वोवल लेटर नहीं, वोवल साउंड, बिकॉज वोवल साउंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल वर्ड लेटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं वोवल लेटर, वोवल साउंड एप्पल. हिंदी में कैसे लिखोगे? एप्पल. तो ये क्या हो गया? हमारा स्वर आया है. क्या आया? स्वर आया, व्यंजन नहीं आया, तो इसकी जगह आ जाएगा एन एप्पल. अब यहां पे आते हैं हम ऑनेस्ट. वाई? एच इज साइलेंट. एच इज साइलेंट. हिंदी में लिख के देखो ओ आते ही हमारे को पता चल जाता है कि ये क्या है. सिर्फ ये वर्ड लिख के देख लो कि ये स्वर है, व्यंजन नहीं है, इट इज अ वोवल. एच इज नॉट एक्सेंटेड, इट इज नॉट स्पोकन एज द फर्स्ट syllable, first sound. So that is why it is an honest man. अब क्या है? देखो यहां पे एक बात और मैं आपको क्लैरिटी देना चाहती हूं. पहले हम लोग होटल को होटल बोलते थे, होटल, हॉस्पिटल. So that was why, because at that time it is an old British English. At that time what happened was that the English was influenced by the French pronunciation, French syllables. So that is why it was an hotel and it was an historical. लेकिन आजकल मॉडर्न टेंडेंसी क्या हो गई है? मॉडर्न टेंडेंसी हो गई है कि हम जो है वो क्या करेंगे? हम इसको होटल बोलते हैं, हम इसको हॉस्पिटल बोलते हैं, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? अ होटल, अ हॉस्पिटल. So I hope you have understood. Just pay attention on what I have already told you. Sound, that is more important. Sound स्वर यानी वोवल होना चाहिए. तो आप क्या लगाओगे? एन. और अगर वो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है तो आप क्या लगाओगे? अ. आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर. ए और एन कहां आता है? सिर्फ सिंगुलर लेटर्स में आता है, इंडेफिनिट में आता है. एंड आई होप यू अंडरस्टूड. So this is Sapna Batla signing off after doing a and an articles with you. Thank you so much.